Okay, so first what we'll do is, let's recap what we did last time. Biomolecules, in simple words, what we had discussed about was basically a list of, or rather a group of non-living molecules that will make up a living organism or a living cell. So from a biological point of view, main categories that are studied under biomolecules are carbohydrates, proteins, lipids, nucleic acids. Apart from that, you have vitamins also that we'll study about. Carbohydrates are made up of monosaccharides, the most popular one of which is glucose. Proteins are made up of amino acids. Lipids are made up of esters of fatty acids. Nucleic acids are made up of nucleotides. Linkages also we have listed here. We'll do them in detail today. Glycosidic, peptide, ester and phosphodiester. Again, from a biological point of view, you're familiar with phosphodiester in DNA RNA. Carbohydrates में हमने देखा था glucose, that was CH2O 6 times. That is monosaccharides के लिए CH2O n times ये applicable होता है फॉर्मूला. उसके अलावा हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि लिस्ट, अगर शुगर्स की बात करें, स्वीट टू टेस्ट, वाटर सॉल्युबल, तो उसमें केन शुगर, मिल्क शुगर वगैरह, ये जो कॉमन सोर्सेज हैं उनसे मिलते हैं. ऑल द नेचुरल सोर्स शुगर्स दैट आर अवेलेबल आर डी फॉर्म, यानी कि डी सीरीज शुगर्स. व्हेन आई से डी, आई मीन कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी. स्मॉल डी इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. कैपिटल डी is not technically dextrorotatory. It signifies an absolute configuration where we draw the structure of glucose in this vertical chain form. What is this projection called? We call it the Fischer projection, where you draw the vertical chain of glucose, 6 carbon atoms, and obviously aldehyde being the terminal group, that will be on number 1 position, and OH H alternate पे उसमें जो लास्ट कायरल कार्बन है ये वाला, इसको हमने डिसाइड किया था कि भाई हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यूज करेंगे टू डिसाइड वेदर द ग्लूकोज इज ऑफ डी फॉर्म, यानी कि कैपिटल डी फॉर्म और एल फॉर्म. अगर इस कार्बन का, यानी कि लास्ट कायरल कार्बन का, आखिरी कायरल कार्बन का OH ग्रुप राइट साइड पे है तो ये डी फॉर्म होगा ग्लूकोज का. ये सिंपल हमने देखा हुआ था. अच्छा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को हमने क्लासिफाई किया. ये तो आपने देखा है, बहुत डिटेल में हमने किया था इसको. मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. ओलिगो मीन्स 2 to 10 units, mono 1, poly greater than 10. Aldose, ketose. Aldose is aldehyde functional group, ketose is ketone functional group. Aldoses and ketoses are functional isomers of each other. Very important MCQ question with respect to NEET point of view, है ना? So for example, if somebody asks you कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, तो आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर. गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज क्या है, वो भी फंक्शनल आइसोमर. लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है, उस पर आज हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे. सेम वे ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज, राइबोज, राइब्यूलोज, एटसेट्रा. राइट, these were classified as per the number of carbon atoms. Then you had disaccharides, lactose, maltose and sucrose. लैक्टोज में ग्लूकोज गैलेक्टोज, माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल, सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रुक्टोज 1. Then you had raffinose, which was a trisaccharide. Now people get confused between a triose and a trisaccharide. बहुत difference है. Triose is one unit made up of 3 carbons. Trisaccharide is one whole molecule, one big sugar molecule made up of 3 units. ठीक है, बहुत फर्क है. एक यूनिट और मतलब 3 यूनिट और 3 कार्बन, इसमें डिफरेंस है. तो रैफिनोज को बहुत सारे लोग ट्रायोज के साथ कंफ्यूज करते हैं. ट्रायोज और ट्राइसैकेराइड में फर्क है. रैफिनोज के अंदर क्या था, एक ग्लूकोज, एक फ्रुक्टोज, एक गैलेक्टोज. और टेट्रासैकेराइड था स्टैकियोज, इसको लोग स्टैचियोज भी बोलते हैं. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और 2 गैलेक्टोज. एंड पॉलीसैकेराइड्स, यस वी आर ऑल फेमिलियर विद स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज फाउंड इन प्लांट्स का सेल वॉल. वेरी गुड. एंड फंगाई के सेल वॉल में क्या मिलता है, पेक्टिन. ये कब हुआ, चिटिनस सेल वॉल. काइटिन, जिसको लोग चिटिन, काइटिन कुछ भी बोल सकते हो आप, चिटिन भी बोल सकते हो, काइटिन भी बोल सकते हो. चिटिनस सेल वॉल होती है ना फंगाई का. वो इनफैक्ट फंगाई के 2 जो प्राइमरी फीचर्स आपने पढ़े हैं बायोलॉजी में, क्या क्या है. एक तो चिटिनस सेल वॉल, दूसरा प्रेजेंस ऑफ saprophytic mode of nutrition. saprophytic, they feed on dead decaying matter. फंगस कहाँ लगता है, ऑर्गेनिक मैटर में.
है ना। लेदर के जूते बारिश में रख दो, फंगस लग जाता है ना। अच्छा, ठीक है। शुगर्स को हमने दो टाइप में और क्लासिफाई किया था, दो टाइप में चेक किया था, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग। मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारा डिटेल बताया था कि फेलिंग्स, टोलेंस की, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही अनएक्सपेक्टेड था कि फ्रुक्टोज भले कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप, फिर भी रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों है वो आज अभी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर कैसे है और क्यों है। ठीक है। ओके, तो रिड्यूसिंग में सारे आप जो पढ़ने वाले हो, जितने आपके एनसीईआरटी में दिए, उसमें सारे रिड्यूसिंग, एक ही नॉन रिड्यूसिंग है, वो है सुक्रोज। और आपको मैं उसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ, भी बहुत मस्त ट्रिक बताता हूँ, याद कैसे करना है आप देख लो। तो ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनमें से किसी के नाम में भी आर है ही नहीं, तो ये रिड्यूसिंग वाले। फ्रुक्टोज एक ही ऐसा एक्सेप्शन, फ्रुक्टोज को एज एन एक्सेप्शन याद रखना है। और सुक्रोज में आर है तो वो रिड्यूसिंग नहीं है, ऐसे याद रखना है, सिंपल। हम जितने भी शुगर पढ़ने वाले हमारा उसमें काम हो जाएगा इस लॉजिक से। हाँ देखो, ये ट्रिक है याद करने की, इसका कोई एक्चुअल रिडक्शन से लेना देना नहीं आर का, बट एक ट्रिक है। और फ्रुक्टोज को एज एन एक्सेप्शन याद कर लो, सिंपल। ठीक है। डी एंड एल, इसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा हो गई। स्मॉल डी, स्मॉल एल आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। दिस इज बाय पासिंग प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू द सोल्यूशन इन अ पोलारीमीटर। तो थ्रू द सब्सटेंस, अगर थ्रू द सॉल्यूशन आप उसको पास करते हो, सपोज ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, फ्रुक्टोज का सॉल्यूशन ले लिया। बाय द वे, एज अ बायो स्टूडेंट, चलो यू शुड बी एबल टू टेल मी वेयर इन द बॉडी इज फ्रुक्टोज फाउंड नेचुरली इन द ह्यूमन बॉडी। जनरली हमारे हर सेल में एनर्जी सप्लाई का काम किसका है? ग्लूकोज का, ऑब्वियस, ये तो हमको पता ही है ना। मतलब हमारे शरीर के जो भी सेल्स हैं, जो भी टिश्यूज हैं, वो तो ग्लूकोज से ही एनर्जी डिराइव करते हैं। एक ऐसा सेल है जो फ्रुक्टोज से एनर्जी डिराइव करता है, कौन सा बेटा? मसल फाइबर में तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड एंड उसको कन्वर्ट करके ग्लूकोज। ओनली स्पर्म, yes, only sperm is the only one that derives energy through fructose. Okay, so DNL absolute configuration, OH of last chiral is on the left or the right, है ना। राइट पे है तो D, लेफ्ट पे है तो L, that is configuration, D form L form, ऐसा करने का। ठीक है, ओके। Then you have DNL ग्लूकोज, हमने ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर्स बना लिए थे डिटेल में, यू आर फेमिलियर विद दिस। ठीक है, चलो अब हम लोग बात कर, ओके, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखो, फिशर प्रोजेक्शन में 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आइटम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नाउ आई नो दैट इट इज अ कीटोन ग्रुप, सो इट हैज टू बी नॉन टर्मिनल, सो आई एम ड्रॉइंग इट ऑन द सेकंड नंबर हियर। Now there are arguments that people make कि सर why not third पे, why not fourth पे, वो भी तो नॉन टर्मिनल है ना। करेक्ट है। सो द आइडिया इज सिंपल, आई टेल यू। व्हेन वी आर ड्राइंग द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अब ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपके दिमाग में आना चाहिए था, नहीं आया तो मैं खुद ही सवाल भी बताता हूँ और जवाब भी बताता हूँ उसका। ठीक है, रुक जाओ। तो सवाल ये आता है बच्चों के दिमाग में कि सर जब आप ग्लूकोज बनाते हो तो वो इस तरह से है, 2 3 4 5 6, और आप जब फ्रुक्टोज बनाते हो तो वो इस तरह से है, तो यहाँ पे, तो हाउ डू यू डिसाइड द पोजिशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट, दैट इज द क्वेश्चन। तो एल्डिहाइड के लिए तो इजी जवाब है कि भाई हाँ टर्मिनल है तो हम उसको फर्स्ट नंबर पे बनाते हैं, वो तो ठीक है। कीटोन के लिए इधर, सो क्वेश्चन ये आता कि इसको आप इधर सेकंड पे बना दिए, थर्ड पे क्यों नहीं बनाते। सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू ड्रॉ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज,
ग्लूकोज का। अभी हम लोगों ने वर्टिकल बनाया, इसको क्या बोला हमने? फिशर प्रोजेक्शन। ये ओपन चेन फॉर्म था ऑब्वियसली, ये क्या था? ये ओपन चेन फॉर्म था। सो वैसे ही हम लोग इसका साइक्लिक फॉर्म भी बनाते हैं। और साइक्लिक फॉर्म में फंडामेंटल आइडिया ये है कि जितना भी मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे आप बना सकते हो, मतलब बड़ी से बड़ी रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेकंड में नंबर पे रखता हूँ तो मेरा जो रिंग बनेगा ये कीटोन ग्रुप और OH ग्रुप। बाय द वे कीटोन एंड OH ये हमने ऑलरेडी एल्डिहाइड कीटोन्स में किया है। ये हेमीकीटाल बनाएगा और यही यहाँ पर अगर हम लोग ग्लूकोज को कंसिडर करें तो अल्डिहाइड और OH, अल्डिहाइड और अल्कोहल क्या बनाएगा? हेमी एसिटाल। ये भी हमने देखा अल्डिहाइड कीटोन्स में। सो द आइडिया इज सिंपल कि यहां पर बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर का रिंग। और यहां पर बनेगा 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर का रिंग। अगर मेरा कीटोन सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे आता तो मेरी रिंग की साइज क्या हो जाती? छोटी हो जाती। सेम वे इधर अल्डिहाइड अगर समझो यहाँ नहीं होता, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, तो इसमें और एक आर्ग्यूमेंट करते बच्चे कि सर इस अल्डिहाइड को आप इस OH के साथ, सेकंड वाले OH के साथ रिएक्ट कराओ ना, या थर्ड वाले के साथ कराओ ना, या फोर्थ वाले के साथ कराओ ना। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है, पता है हमको। यानी कि जितने ज़्यादा मेंबर बन सके उतनी मेंबर स्टेबल होती है रिंग, सीधी बात है। अब उसमें भी ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो यहाँ से क्यों नहीं कराया, फिर 7 मेंबर की रिंग बना लेते। ये भी क्वेश्चन है। नाउ द 6 मेंबर रिंग एंड द 5 मेंबर रिंग्स, द साइक्लोपेंटेन या करेक्ट है ना। तो 6 मेंबर रिंग तो काफ़ी स्टेबल रहती है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, डबल बॉन्ड की बात नहीं है, मेंबर्स की बात करें, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन भी नहीं है, ये O है, यहाँ पे हेमी एसिटाइल ग्रुप है, ध्यान देना। तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है 6 मेंबर्स, दिस इज सिमिलर टू द पायरान रिंग। नाउ पायरान एवरीबडी स्टडीड इन GOC। 6 मेंबर की ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग को हम लोग पायरान बोलते हैं। ये पायरान जैसी दिखती है ना। और ये जो है फ्यूरान, यानी 5 मेंबर की रिंग कैसी दिखती है? फ्यूरान रिंग जैसी दिखती है। पर ये पायरान कहाँ से डिराइव किया था? ये ग्लूकोज से डिराइव किया था। तो ध्यान से देखो, ग्लूकोज से डिराइव किया था, ग्लूकोपायरानोस। और फ्यूरान कहाँ से डिराइव किया था? तो फ्रुक्टोज से, तो फ्रुक्टोफ्यूरानोस। यानी इन सिंपल वर्ड्स फिशर प्रोजेक्शन में इनका नाम है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, पर साइक्लिक फॉर्म में इनका नाम है क्या? ग्लूकोपायरानोस एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोस, है ना। तो अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें अगर हम लोग और इसको समराइज करके लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, फिशर तरीका, स्ट्रक्चर लिखने का फिशर का तरीका, फिशर प्रोजेक्शन was vertical open chain of glucose, correct? Was vertical open chain and names or nomenclature names were glucose and fructose, ठीक है। और वही सेम अगर हम सेवन ट्वेंटी फुल मार्क्स एक ही स्टूडेंट को सो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ठीक है। एंड सेम थिंग, नाउ हियर इज द न्यू टर्म दैट वी आर इंट्रोड्यूसिंग। सेम थिंग व्हेन यू राइट इन साइक्लिक फॉर्म, इट इज कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं उसको? हैवर्थ प्रोजेक्शन। एंड हैवर्थ प्रोजेक्शन इज साइक्लिक क्लोज चेन फॉर्म। मतलब सेम वही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अब हम लोग साइक्लिक तरीके से लिखेंगे एंड द नेम नाउ विल बिकम ग्लूकोपायरानोस एंड फ्रुक्टोफ्यूरानोस। क्यों? क्योंकि वो पायरान रिंग और फ्यूरान रिंग से सिमिलर होते हैं। 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, दिस इज 6 मेंबर्स एंड दिस इज 5 मेंबर्स।
ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई हैवर्थ प्रोजेक्शन होती क्या है. लेट्स सी. क्या? हाँ, क्लोज चेन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड व्हेन द aldehyde or the ketone group, that is the functional group, reacts with the alcohol group present in it, है ना. तब तो यानी कि हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल जब बनता है तो साइक्लिक फॉर्म. अब व्हाई डू वी नीड द साइक्लिक फॉर्म, दैट इज द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज कि हम लोग चुपचाप जो फिशर प्रोजेक्शन लिख रहे थे तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमको साइक्लिक फॉर्म लिखने की जरूरत क्या थी बॉस. सो देर आर सर्टन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज, there are certain properties of glucose that cannot be explained on the basis of its straight chain structure. That is why it was said, or it was rather hypothesized, that glucose would have a cyclic structure. जैसे बेंजीन के पास कैसे दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, वैसे ग्लूकोज के पास भी एक स्ट्रेट चेन फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म भी है और एक साइक्लिक फॉर्म भी है. ऐसा है फंडा. तो देखते हैं, पहला देख लेते हैं प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज. अब इसमें प्रेपरेशन वगैरह जो है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, प्रेपरेशन के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं, काफ़ी बार 2-2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आते हैं. बहुत सिंपल चीज़ है. देखो, पहला तो सुक्रोज. तो सुक्रोज से क्या किया, बॉयल किया, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस बॉइल्ड विद ऑब्वियसली एसिडिक हाइड्रोलिसिस, सीधी बात है. तो बॉइल्ड विद HCl और H2SO4 in an alcoholic solution, glucose and fructose are obtained. But why alcohol? Why alcoholic solution? That is the question. Acidic समझ में आता है, चलो हाइड्रोलिसिस के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, वो समझ में आता है. Why alcoholic solution? इसमें लिखा नहीं है, but can you think of something? चलो ठीक है, ये होमवर्क है, ये छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूँ कि वाई अल्कोहलिक सॉल्यूशन, ये ढूंढना. ठीक है, एक हिंट दे देता हूँ. सॉल्युबिलिटी, 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज. सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन जाता है. सेम आपको लार्ज स्केल पे ऑब्टेन करना है ग्लूकोज, कमर्शियली लार्ज स्केल. ठीक है, तो क्या करना है, स्टार्च को बॉईल करना है, अगेन डाइल्यूट H2SO4 के साथ. देखो सुक्रोज है तो एक मॉलिक्यूल पानी का चाहिए, एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज बनेगा. सेम वही स्टार्च लिया, n मॉलिक्यूल्स पानी का ले लिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या बनेंगे, n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बन जाएंगे. सिंपल है ना. ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों बोलते हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि नॉर्मली वो डी फॉर्म, अगेन बच्चे बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था डी फॉर्म और डेक्सट्रोज अलग होता है. करेक्ट. तो ग्लूकोज नॉर्मली डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बोला था, चेक करो. प्लस 92.7, ये पोलारीमीटर से चेक आप कर सकते हो. ग्लूकोज का नेचुरल फॉर्म, इसलिए उसको डेक्स्ट्रोज बोलते हैं. जो ग्लूकोज की बॉटल हॉस्पिटल्स में चढ़ाते हैं पेशेंट को, देखा होगा ना, सुना होगा, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसके ऊपर भी डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन लिखा होता है. क्या लिखा होता है, डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन. उसके ऊपर ग्लूकोज नहीं लिखा होता, उसके ऊपर डेक्स्ट्रोज लिखा होता है. ठीक है, अब उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. ये प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है. ऑन हीटिंग विद HI, HI क्या है, एक्सीलेंट रेड्यूसिंग एजेंट है. तो HI के साथ हीट करने पे इट फॉर्म्स N हेक्सेन. HI के साथ हीट करने पे इट फॉर्म्स N हेक्सेन. इससे पता चला, सॉरी नहीं स्ट्रक्चर में नहीं दिए, ये एक्चुअली केमिकल प्रोडक्ट. जैसे 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जैसे आप लोग हर ग्रुप के लिए करते हैं, 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए, ये फर्स्ट और सेकंड, और बाकी उसकी प्रॉपर्टीज में आ गए. प्रॉपर्टीज से, सॉरी है ना, ये रहा. नाउ द आइडिया इज जी वही मैं कह रहा हूं, हियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के अंडर ही ये सब दिया है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज प्रूवन बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज. दैट इज व्हाट आई एम कमिंग टू, कि साइक्लिक कैसे प्रूव हुआ, ओपन चेन कैसे प्रूव हुआ, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, देखो तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, हमने एक एक रिएक्शन से एक एक प्रॉपर्टी को जज किया. कैसे जज किया, चेक करते हैं. तो हीटिंग विद HI N हेक्सेन बना के देता है ग्लूकोज, तो उससे हमको पता चला कि ठीक है भाई 6 कार्बन, N हेक्सेन है तो 6 कार्बन है, स्ट्रेट चेन है, ये पता चला.
तो स्ट्रेट चेन इस बेसिस पे बोला कि भाई HI के साथ रिएक्ट करता है. अच्छा, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमाइन टू फॉर्म ऑक्साइन. ऑब्वियसली, तो इससे पता चला कि भाई कार्बोनिल ग्रुप है. तो X is the reaction, Y is the inference or the conclusion that we made from the reaction. That is how you're supposed to study these points. जैसे HI के साथ रिएक्शन, तो क्या प्रूव हुआ? 6 कार्बन. जैसे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन, क्या प्रूव हुआ? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. समझ में आ रहा है? बताता हूं. तो हाँ, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में ये रिएक्शन पढ़ा था. चेक करते चलो. हमने एल्डिहाइड कीटोन्स में ये रिएक्शन पढ़ा था कि RC डबल बॉन्ड OR. अभी समझो ये एल्डिहाइड होता तो R और H होते, और कीटोन है तो R और R. ठीक है. इसका रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया NH2OH NH2OH के साथ, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ हमने रिएक्शन करके देखा था. याद नहीं है तो फिर एक बार वो टेबल देख लो जिसमें वो Z ग्रुप ऐसा लिखा है. पहले वाटर निकाल दिया तो क्या बना? RCR डबल बॉन्ड NOH. ये हाइड्रोक्सिल अमाइन था, OH और NH2 हाइड्रोक्सिल अमाइन, और इसका नाम था ऑक्साइन. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. तो ये प्रूव, इससे ये रिएक्शन हुआ. इससे क्या प्रूव हुआ कि भाई C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट था, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है. तो प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप प्रूव हुआ ना. समझे? हाँ, नहीं पता होता. पहले कैसे पता था? ग्लूकोज में C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, ये प्रूव कैसे किया भाई? ये बन रहा है, क्या बनता है? NOH डबल बॉन्ड NOH, यानी कि ऑक्साइन. सेम चीज साइनोहाइड्रिन बना के भी प्रूव की. तो अब ये तो सेंस, हाँ ये अभी फटाक से सेंस, इट विल मेक सेंस टू यू. ये समझेगा क्या कि हाँ सर, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है तो वो HCN के साथ एडिशन रिएक्शन करके साइनोहाइड्रिन देता है. हाँ, है ना. तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ वो ऑक्साइन देता है और HCN के साथ में वो साइनोहाइड्रिन देता है. तो हेंस प्रूव हो गया कि हाँ इसके पास कार्बोनिल ग्रुप था. अच्छा, ऑक्सीडाइज करने पे उसका एसिड बनता है, तो वो जो कार्बोनिल था वो एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है. कैसे प्रूव हुआ कि एल्डिहाइड है? क्योंकि वो इजीली ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया. एंड दिस इज वेरी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड. ध्यान से देखना. रिमेंबर, मैंने ये कहा था कि प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज टू एसिड अगर स्ट्रॉन्ग एजेंट मिला, और एल्डिहाइड तो बनता ही एसिड. तो हमने ये तो 1000 बार लिखा हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू एसिड. करेक्ट? सॉरी, थ्रोट इज वेरी बैड. तो प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड टू एसिड. ठीक है. ग्लूकोज यहाँ है, रिड्यूस किया तो प्राइमरी अल्कोहल बनना चाहिए, ऑक्सीडाइज किया तो एसिड बनना चाहिए. बट द इश्यू विद ग्लूकोज इज that you have glucose में CHO here and then CHOH 4 times. अब CHOH 4 times, मैं अभी साइड नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूँ. CHOH 4 times है और लास्ट में CH2OH है. अब मुझे ये पता है कि ये प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल है, CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, CHOH ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल है, एंड दिस इज एल्डिहाइड. एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना देगा. कब? अगर वीक ग्रुप लिया तो भी. सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा ज्यादा टफ है ऑक्सीडाइज करने को, प्राइमरी भी थोड़ा सा टफ है ऑक्सीडाइज करने को, है ना. प्राइमरी कंपैरेटिवली सेकेंडरी से ज्यादा आसान है, ऐसा पॉसिबिलिटी है. अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया तो दिस ऑल्सो बिकेम एसिड, यानी एल्डिहाइड बिकेम एसिड, प्राइमरी अल्कोहल ऑल्सो बिकेम एसिड. कब? अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो. करेक्ट? समझा कि नहीं समझा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो दोनों बन जाएगा. हाँ, करेक्ट, वेरी गुड.
सो इफ आई से कि अच्छा इसका CH2OH एज इट इज रहा, मतलब कि मैंने यहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, रिड्यूसिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, है ना। और यही सेम मैं अगर स्ट्रॉन्ग ले लेता तो ये दोनों ऑक्सीडाइज होकर एसिड बन जाते। करेक्ट। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता तो मतलब हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, और अगर हम लोग को मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता तो हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था। सिंपल। नाउ what are these mono and di forms called? That is what is given in the NCERT, है ना। the mono form, एक सेकंड the mono form, ग्लूकोज का जो मोनो फॉर्म है यानी कि मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से बना। कैसे? एग्जांपल ब्रोमीन वाटर, ठीक है। दिस इंडिकेट्स aldehyde group. Yeah, tell me, क्वेश्चन पूछो। करेक्ट, वही तो प्रूव किया उन्होंने। एसिड मिलने से एल्डिहाइड प्रूव किया, बट अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हो कि ये देखा कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अलग बिहेवियर है, स्ट्रॉन्ग के साथ अलग बिहेवियर है, ऐसा ये फंडा था। तो ये जो एक साइड पे COH लगा हुआ है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। एंड व्हेन यू से ब्रोमीन वाटर, इट्स लिटरली Br2 and H2O, ठीक है। एक्सेस ब्रोमीन विद वाटर। नहीं, एल्डिहाइड में ब्रोमीन का एडिशन कहाँ देखा हमने? कभी नहीं देखा। एल्डिहाइड में हैलोजिनेशन कहाँ देखा? एल्डिहाइड में एडिशन प्रोडक्ट में हमने क्या क्या देखे थे? NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, देन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सिंपल, है ना। एंड वन मोर वाज नाइट्रो ग्रुप। But nitro group also is more like that Friedel, EAS, है ना, electrophilic aromatic substitution. But ये चार तो मेन थे। अच्छा, now the question comes to polyhydroxy। हमको कैसे पता 5 OH ग्रुप है? ये भी ढूंढना था। तो acetylation with acetic anhydride gives glucose pentacetate। पेंटाएसिटेट मिला तो प्रूव हुआ कि अच्छा 5 OH ग्रुप थे भाई। 5 OH ग्रुप रहेंगे तो पेंटाएसिटेट मिलेगा। सिंपल। 4 OH ग्रुप मिले रहते तो टेट्राएसिटेट मिला रहता। अच्छा, ये रूल तो केमिस्ट्री का है ही ना कि 2 OH एक कार्बन पे हो ही नहीं सकते। तो 5 OH हमने प्रूव कर लिए, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि 5 OH हैव टू बी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम्स। तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रूव हो गया साथ ही साथ कि ये CHOH 4 टाइम्स है, ना कि ऐसा कि एक ही कार्बन पे 2 OH लगे हुए। ये तो नहीं होने वाला। अच्छा, इसमें क्या है? जहां जहां OH है वहां पर एसीटेट ग्रुप लग गया। हाइड्रोजन हटा के CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा दिया। 5 OH थे तो 5 बार एसीटेट ग्रुप लगा दिया। ये भी ठीक है। एंड आखिरी, जैसा मैंने ऑलरेडी कह दिया, on oxidation with nitric acid. Now nitric acid in general is not a very strong oxidizing agent, but for organic compounds अच्छा खासा एक्शन है उसका, स्ट्रॉन्ग है वो। तो वो क्या देता है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज सैकरिक एसिड। ध्यान से देखना। तो यानी कि ग्लूकोज मैंने लिया तो वो सैकरिक एसिड दे देता है। तो यहां पर अब मैं यहां पर बीच में लिखता हूं ग्लूकोज। यहां पर लिखता हूं ब्रोमीन वाटर, एंड हियर आई विल राइट HNO3. HNO3 is strong, bromine water is mild. So with HNO3 it will produce acid at both ends.
Correct. This is saccharic acid. With bromine water, it will produce acid only at the aldehyde end and not at the primary alcohol end. Yes, you can use, if you want, you can use KMNO4 and all those. But क्या होता है कि KMNO4 then will start oxidizing the secondary alcohol group also. KMNO4 and K2Cr2O7. So those are very strong oxidizing agents, and especially if you use them in acidic medium. So this is saccharic, obviously, क्योंकि ये saccharide था. This is saccharic acid, and the mild form is gluconic acid. Now one more way of looking at it is, ग्लूकोज को एक बार ऑक्सीडाइज करो तो ग्लूकोनिक, दूसरी बार ऑक्सीडाइज करो तो सैक्रिक, ऐसा भी हो सकता है ऑब्वियसली. तो इसीलिए ये एरो है थोड़े से कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देख लेना. ये ग्लूकोज से डायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया, क्या यूज करके, नाइट्रिक एसिड यूज करके, या फिर ग्लूकोनिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज किया तो भी सैक्रिक ही बन रहा है. ठीक है, तो एरोस के डायरेक्शन को ध्यान से देखना. यस, so you can add here you can add HNO3, and here from this glucose, if you want to go directly to gluconic, then you will use bromine water. That's the idea. Okay, just like when I wanted to go from primary alcohol to aldehyde, I used PCC, PDC and copper at 573. I did not use K2Cr2O7 or CrO3 for that matter. Right? अच्छा, then you have the Fisher projection. We already know. ठीक है, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई फिशर प्रोजेक्शन क्या था, और ये मैंने बहुत ही क्लियरली बोला हुआ है कि configuration of glucose is correctly represented as 1, gluconic acid as 2 and saccharic acid as 3. तो चेक, मैंने ये ऑलरेडी कहा आपको, लास्ट लेक्चर में भी कहा था, अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ. मेक श्योर दैट यू ड्रॉ last chiral का OH on the right side, which means you are drawing a D series का glucose. Then the second last, the one just next to it, also on the same side, and then alternate. That is the structure of glucose. ऐसा good way to remember. Yes, nice. Okay, so उसके बाद हमने ये D and L फॉर्म्स को तो काफ़ी डिटेल में देख लिया था कि D सीरीज, L सीरीज, है ना. This has to be written only on paper. These are just conventions for writing. These are just configurations. Okay, D glucose, L glucose, वैसे D glyceraldehyde, L glyceraldehyde वगैरह. अब क्वेश्चन ये था कि भाई जब हम लोग कन्विंस थे कि ये ग्लूकोज है, और जब हम लोग कन्विंस थे कि भाई इसका ये फिशर प्रोजेक्शन है, तो हम लोग को साइक्लिक वाला नाटक करने की जरूरत क्या थी. एंड दिस इज वेयर दिस स्टेटमेंट कम्स इनटू पिक्चर, दैट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज बट नॉट द फॉलोइंग. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे रिएक्शंस थे जो उसके नॉर्मल लेंथ वाले स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते थे. जैसे कि डिस्पाइट हैविंग aldehyde ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ्स टेस्ट. तो ये तो गड़बड़ है, क्योंकि aldehyde ग्रुप है तो स्किफ्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट देना चाहिए, नहीं दिया. डज नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट ऑल्सो विद सोडियम बाइसल्फाइड. अभी इनफैक्ट सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3 के साथ में वो एडिशन प्रोडक्ट भी नहीं दिखाता जो एल्डिहाइड्स को दिखाना चाहिए था. अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने. उसके बाद पेंटा एसीटेट बनाने के बाद, अगर पेंटा एसीटेट, मैंने कहा कि पेंटा एसीटेट तो सिर्फ OH ग्रुप के रिएक्शन से बन रहा है, करेक्ट. ध्यान से देखना, यहां पर पेंटा एसीटेट, आई गो बैक टू दिस, पेंटा एसीटेट बनने के बाद भी एल्डिहाइड ग्रुप तो इंटैक्ट है, बोलो यस और नो. तो फिर ये एल्डिहाइड के रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा, ये क्वेश्चन आया लोगों के दिमाग में और वैलिड क्वेश्चन था.
वो क्या बोले वो लोग कि भाई पेंटा एसीटेट बनाने के बाद वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? तो इसका मतलब कि पेंटा एसीटेट बनाते वक्त जो CHO ग्रुप था वो कहीं गायब हो गया, यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप कभी है कभी नहीं है। तो ऐसा कैसे भाई कि कभी है कभी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दैट इज व्हेन दे केम अप विद द आइडिया कि अच्छा, जब ओपन चेन फॉर्म लिखते हो तो एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर बाद में वो एल्डिहाइड ग्रुप अपने ही अंदर के OH यानी कि अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके हेमीएसिटाइल की एक क्लोज चेन बना लेता है, इसीलिए आगे वो एल्डिहाइड ग्रुप वाले रिएक्शंस देना बंद कर देता है। दैट वाज द आइडिया। गया दिमाग में? सिंपल था। जब तक एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो वो एल्डिहाइड ग्रुप के सारे रिएक्शन दे रहा है, जब वो साइक्लिक बना दिया तो वो एल्डिहाइड ग्रुप के रिएक्शन देना बंद कर दिया। एंड दैट इज वेयर द आइडिया ऑफ दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर केम इनटू बीइंग। Now we have already done alpha and beta, but we'll discuss that in detail. काफी डिटेल में और डिस्कस करेंगे अभी इसको। So glucose is found to exist in two crystalline forms, that is alpha and beta, and very important MCQ points directly asked in your NEET exam. Alpha form और beta form में फर्क क्या है? अल्फा का मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, ठीक है। बीटा का मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन, 4 केल्विन का फर्क है। पहली बात, हाउ इज इट ऑब्टेन्ड? अल्फा इज ऑब्टेन्ड by crystallization. Alpha form is obtained from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, and beta form is obtained from hot and concentrated aqueous solution at 371 Kelvin. Now this behavior was not understood by a lot of scientists because they were curious कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एक टाइम पे ये एल्डिहाइड की तरह बिहेव कर रहा है, एक टाइम पे नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई इसका एक दूसरा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, और वो क्या स्ट्रक्चर है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ड्यूरिंग टुडेज लेक्चर इटसेल्फ कि इसको हम लोग हैवर्थ प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? यस, वी नो इट बाय द नेम ऑफ हैवर्थ प्रोजेक्शन। नाउ लेट्स सी। yes. Now simple, let's see. अगर मैं हैवर्थ प्रोजेक्शन की बात करूं, हाउ टू राइट हैवर्थ प्रोजेक्शन? हैवर्थ प्रोजेक्शन मेनी पीपल फाइंड इट अ लिटिल टफ टू राइट. I'll simplify it for you and I'll show you how to write it. Okay. First of all, we need to understand that when glucose is getting converted into its cyclic form, let's say this was OH. Now I think you would be able to write the structure easily. स्ट्रक्चर तो अभी तक पक्का हो गया होगा। ये डी ग्लूकोज था हमारे लिए। ये डी ग्लूकोज का कौन सा प्रोजेक्शन था? ये फिशर प्रोजेक्शन था। ये क्या था? फिशर प्रोजेक्शन था, है ना, वर्टिकल ओपन चेन। अब ये क्या बोलता है कि भाई ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो अल्कोहल है, कौन सा? सेकंड लास्ट वाला, जिसने डिसाइड किया था हमारा डी और एल, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए। और जब अल्कोहल और एल्डिहाइड एक साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिटाल, हेमी एसिटाल बनता है। हेमी एसिटाल बेसिकली क्या था? COC ग्रुप था। तो पब्लिक बोले कि ठीक है, COC ग्रुप बनता है। तो यहां पर ये H तो एज इट इज रह गया, इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है, बाकी जो बीच में उनको कुछ हाथ नहीं लगाना है, वो एज इट इज रहेंगे, और लास्ट वाला भी एज इट इज रहेगा। अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से देखना, अब जो स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है उसमें COC बॉन्ड है। क्या है? COC बॉन्ड है। कुछ लोग इसको ईथर बोलते हैं, ईथर भी बोल सकते हो कि भाई हाँ एल्कोक्सी के तरह बॉन्ड है ये। COC बॉन्ड तो ईथर में भी होता है, बरोबर है। तो हेमी एसिटाल इज अ टाइप ऑफ ईथर ओनली। देखा जाए
क्योंकि COC बॉन्ड है तो हेमी एसिटाल में ईथर होता है। पर यहाँ पे हमने इस हेमी एसिटाल को नाम दे दिया था हमारा हैवर्थ प्रोजेक्शन, और मॉलिक्यूल को हमने नाम दे दिया था ग्लूकोपाइरानोज। ये भी हमने देख लिया। अब आता है सवाल इस कार्बन एटम को जज करने का। ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज। इनिशियली वॉज दिस कार्बन काइरल, यस और नो? नॉट एट ऑल। पहले ये काइरल नहीं था, पर क्या अब ये काइरल है? हाँ, तो पहले तो हम लोग ये जो 4 स्टार मार्क किए यही था। तो हियर n was equal to 4, मतलब नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स was equal to 4, सो नंबर ऑफ आइसोमर्स was 2 raised to n, मतलब 16, करेक्ट, फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से। बट नाउ हियर the carbon atom that was achiral, यानी initially which was not chiral, now is chiral, which means now my n का value becomes 5 and my number of isomers 2 raised to n becomes equal to 32. So what is so special about this particular carbon? This carbon, which was not chiral before but has become chiral now, is called the anomeric carbon. अनोमली होती है ना, अनोमली, अनोमलस बिहेवियर, है ना? कौन सा? हियर ना, आई विल शो यू। ये OH कहाँ से आया, आई विल शो यू। ये बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर OH कहाँ से आया। आपको याद नहीं है कि एल्डिहाइड कीटोन में हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते वक्त एक जगह OR और एक जगह OH ऐसा लिखा था? याद करवाता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, वो OH वहाँ से आया, हेमी एसिटाइल का ही फॉर्मेशन है वो। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ भी। पहले ये समझो कि जो कार्बन पहले काइरल नहीं था और अभी काइरल है, दैट इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन, सिंपल। अब बोलोगे ठीक है, मान लिया भाई। नहीं, सारे केसेस, फ्रुक्टोज में भी सिखाऊंगा अभी, फ्रुक्टोज में भी सिखाऊंगा कि भाई एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो पहले काइरल नहीं था, अब काइरल है। उसकी वजह से क्या चेंज हुआ भाई? नंबर ऑफ काइरल कार्बन्स बदल गए, नंबर ऑफ आइसोमर्स बदल गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट नाउ अर्लियर हु वाज द डिसीजन मेकर? अर्लियर कौन बता रहा था कॉन्फ़िगरेशन? ये वाला कार्बन, ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा था। अब इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं। अब एनोमेरिक कार्बन नया है ना, कि नया खिलाड़ी आया गेम में, तो वो नया खिलाड़ी डिसाइड करेगा। अब कॉन्फ़िगरेशन ये। तो फिशर क्या बोला कि भाई ओपन चेन बनाओ। फिशर बोला ओपन चेन बनाओ और कैपिटल डी और कैपिटल एल बोलो, किस बेसिस पे? लास्ट काइरल के OH ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे। ये गया दिमाग में? तो हैवर्थ बोला नहीं 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 नहीं, साइक्लिक बनाओ और डी और एल मत बोलो, अल्फा बीटा बोलो। किसके बेसिस पे? एनोमेरिक कार्बन के OH के बेसिस पे। समझा? ठीक है, अब ये इस जो मैंने अभी कहा उसको मैं समराइज करता हूं। फिशर बोला वर्टिकल चेन लिखो, हैवर्थ बोला साइक्लिक लिखो, पहली बात। ठीक है, फिशर बोला ओपन चेन लिखो, हैवर्थ बोला क्लोज चेन लिखो, स्ट्रक्चर बोला ठीक है। फिशर बोला डी एंड एल फॉर्म्स लिखो, हैवर्थ बोला नहीं नहीं अल्फा और बीटा लिखो। फिशर बोला डी और एल कैसा डिसाइड करेंगे? इसको लास्ट काइरल कार्बन के OH ग्रुप से डिसाइड करेंगे। हैवर्थ बोला नहीं 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 अल्फा एंड बीटा करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे? एनोमेरिक कार्बन के OH ग्रुप से डिसाइड करेंगे। एकदम क्लियर बोलो हाँ कि ना? अच्छा, फिशर भाई बोल के गए थे कि लास्ट काइरल का OH ग्रुप राइट साइड पे होगा तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड पे होगा तो एल फॉर्म। ठीक है ना? अब हमारे हैवर्थ भाई क्या बोले? उल्टा, एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो अल्फा और राइट साइड पे होगा तो बीटा। नहीं, इजी है, मैं आपको बताता हूँ, इजी है।
अब ये लोगों को अगेन लगता है कंफ्यूजिंग, लेकिन ये एक्चुअली बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। अब जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया पिछले पेज में, तो आई वॉन्ट यू टू पे वेरी क्लोजर। टुडे आई एम गोइंग टू डू ओनली दिस। टुडे एंटायर इन डेप्थ घुस के अपन डिस्कस करेंगे हैवर्थ और फिशर को। मुझे पूरी क्लैरिटी चाहिए हैवर्थ और फिशर में, क्योंकि प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस तो आधे घंटे का काम है, वो आप रट नहीं लोगे, मतलब वो इजीली समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतने सारे रिएक्शंस किए हैं, एल्डिहाइड्स के, कीटोन्स के, अमाइंस के, इतने किए आपने। स्ट्रक्चर में बैंड बजती है बच्चों की। कहाँ पे स्ट्रक्चर में बैंड बजती है? अल्फा बीटा जज करने में और डी और एल जज करने में। तो उसको क्लैरिटी चाहिए, ध्यान से देखो, उसको इन डेप्थ घुस के करेंगे। अब फंडा क्या है जो मैंने प्रीवियस पेज पे ड्रॉ किया था, ये ठीक है, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। मैंने इस स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, इस स्ट्रक्चर को मैंने यहां पर आपके लिए पेस्ट किया, और इस स्ट्रक्चर को मैं पूरा का पूरा रोटेट कर रहा हूं। रोटेट बोले तो इसको ऐसा लेटा रहा हूं, देखो, मतलब इसको, इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसा ऐसा गिरा दिया, तो ये ओ ऊपर आ जाएगा, ओ ऊपर आ जाएगा। हाँ, और ये जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं ओ एच और एच जो हैं, जो अभी राइट और लेफ्ट में, वो ऊपर और नीचे आ जाएंगे। दैट्स द आइडिया, ठीक है। तो नाउ हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस हैवर्थ प्रोजेक्शन? ध्यान से देखना, बिकॉज दिस विल लुक वेरी वियर्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन, ठीक है। पहले इंप्रेशन में लगेगा कि क्या ड्रॉ कर रहे हो सर, बट वंस यू गेट द आइडिया देन इट बिकम्स वेरी इजी टू ड्रॉ। ओके, सो आई हैड सी ओ एंड सी। अब बोलोगे हाँ ठीक है, कितने मेंबर की रिंग थी सर? तो 6 मेंबर की रिंग थी, तो 6 मेंबर की रिंग बना दी, सी ओ सी, फिर सी 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 सी, ऐसा टोटल कितने हुए? 6 मेंबर हुए। नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 मेंबर हो गए, करेक्ट। कार्बन कितने हुए? 5 मेंबर हुए, 6, छठा तो ऑक्सीजन है। अच्छा, नंबर थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना। I'll tell you, wait. Now note this here, this structure. I'm drawing this structure here for you in a simplified form. This structure that I'm just marking in yellow right now. No, actually not this one. This one, the last one. जो बीटा फॉर्म है। ये जो येलो में बना है, मार्क किया, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। बट मैंने कैसे बोला, मैं उसको कैसा ड्रॉ कर रहा हूँ? मैं उसको ऐसा फ्लिप करके ड्रॉ कर रहा हूँ। फ्लिप यानी कि उसको ऐसा गिरा दिया, लेटा दिया, ऐसा ड्रॉ कर। तो ये रहा, चेक करो, यहाँ पे चेक करो, नंबर फर्स्ट कार्बन, ये रहा नंबर फर्स्ट कार्बन, और नंबर 5th कार्बन के बीच में O का बॉन्ड है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ अच्छा, नंबर 1 का कार्बन, 2 3 4 और 5th कार्बन, 5 और 1 के बीच में O का बॉन्ड है। तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है, चलो ठीक है, मान लिया। समझ में आ रही बात? 1 और 5 के बीच में यहाँ पर ये रहा 1, ये रहा 5, और उसके बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड। ओके, मान लिया सर। अच्छा, फर्स्ट वाले पे लेफ्ट साइड पे OH है, सेकंड वाले पे राइट साइड पे OH है, थर्ड वाले पे वापिस लेफ्ट साइड पे OH है, फोर्थ वाले पे राइट साइड पे OH है, 5th वाले पे क्या अटैच्ड है? 6th कार्बन है। चेक, लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन है और नीचे उसके 6th कार्बन। ठीक है, so each of the carbon atoms will have 2 things attached to them. So I'm drawing vertical lines like this. Simple. I'm drawing. हाँ, सी नहीं भी लिखा तो चलता था, बट मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है। तो
मैंने ड्रॉ किए वर्टिकल लाइंस। अब ध्यान से देखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो कुछ लेफ्ट साइड पे है ना, जो कुछ लेफ्ट साइड पे है वो ऊपर लिखो, जो राइट साइड पे है वो नीचे लिखो। बस इतना सिंपल फंडा दिखना है। जो लेफ्ट साइड पे है वो ऊपर लिखो, जो राइट साइड पे है वो नीचे लिखो। तो आप बोलोगे ठीक है सर, तो एक एक करके गिनते जाते हैं। कार्बन नंबर 1 पे OH कहाँ है? लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा। तो हाइड्रोजन कहाँ लिखूंगा? नीचे। समझ में आया? कार्बन नंबर 2 पे OH कहाँ है? राइट साइड, तो मैं कहाँ लिखूंगा? नीचे, यहाँ पे H। कार्बन नंबर 3 पे OH कहाँ है? लेफ्ट साइड, तो मैं यहाँ लिखूंगा OH H। कार्बन नंबर 4 पे OH कहाँ है? नीचे, राइट पे तो नीचे। नाउ कार्बन नंबर 5 पे दिस इज अटैच्ड, यानी कि 6th कार्बन इज अटैच्ड। बोलोगे यस, नाउ द 6th कार्बन, there is a rule or the fixed thing that the 6th carbon will always go on top। छठा कार्बन किधर जाएगा? टॉप। 6 मारा, बॉल किधर गया? ऊपर गया कि नीचे गया? ऊपर। तो 6 नंबर ऊपर फिक्स, 6 नंबर को हिला नहीं सकते जगह से, तो 6 नंबर का कार्बन यहां आ गया। समझे? तो 5th वाले पे क्या बचा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भले ही लेफ्ट पे था, फिर भी हम नीचे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर यह फिक्स रूल आ गया कि भाई 6 नंबर वाला कार्बन फर्स्ट ऊपर जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। ध्यान से देखना। अब ये मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, इसको मैं बोलूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो मैं इसको बोलूंगा ग्लूकोपाइरानोस। इसको मैं क्या बोलूंगा? ग्लूकोपाइरानोस बोलोगे। ठीक है, ग्लूकोपाइरानोस मान लिया सर। बट ग्लूकोपाइरानोस का ये डी था कि एल था? तो भाई नेचुरल तो डी फॉर्म ही होता है, तो डी तो पक्का था। बट अल्फा है कि बीटा है? समझे? जब साइक्लिक देखोगे तो सवाल क्या करना है, डी और एल से काम नहीं चलेगा। अच्छा, डी तो बाय डिफॉल्ट है, बोलो हाँ कि ना? करेक्ट। जहां से ओरिजिन किया ये रहा ना डी, ये रहा, देखो ये डी, जहां से हमने शुरुआत की। अच्छा, शुरुआत में मैंने क्या बोला आपको कि आपके एनसीईआरटी में सारे के सारे डी फॉर्म ही है, और ये मैंने प्रूव करके भी बताया था पिछले लेक्चर में, डी फॉर्म ही है। तो डी तो, हाँ, तो डी तो पक्की बात है, डी तो है ही। अब आता है अल्फा बीटा जज करना है। तो अल्फा बीटा जज करने के लिए बेस्ट प्यारी सी चीज है कि CH2OH कहाँ है? नीचे जाएगा क्या कभी? नहीं, वो ऊपर ही आएगा। लास्ट वाला छठा नंबर का कार्बन ऊपर ही आएगा। जब ये OH भी ऊपर है, मतलब एनोमरिक कार्बन का OH और ये लास्ट वाला दोनों सेम साइड है, दोनों क्या है? सेम साइड है, तो ये बीटा है। और अगर ये OH नीचे होता तो ये ऑपोजिट प्लेन में हो जाते, तो वो अल्फा होता। तो अगेन आई हैव अ ट्रिक, मैंने ये ट्रिक बनाई है इसको आसानी से याद रखने की। ये बाजू बाजू में है तो बीटा, ये आमने सामने होते तो अल्फा। समझे? ठीक है। नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ इट दिस वे, कि मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको हाथ, और यहां पर मैंने 6 कार्बन बनाए, बट आई हैव केप्ट देम लाइक दिस, चेक, एंड दीज आर द बॉन्ड्स। मीन्स दीज 6 कार्बन्स यू हैव टू इमेजिन देम इन अ प्लेन। That is when it will make sense. Think of it like a basketball hoop. बास्केटबॉल का हुप देखा है? जिसमें अपन बास्केट हुप बोलते हैं उसको, बास्केट बोल लो, बास्केटबॉल का हुप। तो ये ऐसा है, तो इमेजिन करो कि ये ऐसा प्लेन, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, और इधर 6 कार्बन है, और हर एक पे ऐसा मैंने बॉन्ड लगाया। तो आप जब आप इसको 2 डायमेंशन में पेपर पे देखते हो तो ये बहुत अजीब दिखता है, बट यू हैव टू टर्न द पेपर अ लिटिल एंड इमेजिन दैट ओके ये ऐसा नहीं, ऐसा ही। तो इसमें अपने को स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एंड हियर व्हेन आई अंडरस्टैंड, अच्छा CH2OH इधर है, OH इधर है, दोनों सेम प्लेन में बाजू बाजू। OH इधर था स्टार्ट में, CH2OH तो ऊपर ही आने वाला है, ये पक्की बात है, दोनों ऊपर है, बीटा। ये OH नीचे आ गया, अल्फा। सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर। वेरी, हाँ, simple. So just like we drew 4 structures for glucose ना, DL ग्लूकोज का 2, फ्रुक्टोज का 2 बनाया था, वैसे ही अब हम
ग्लूकोज का डी फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट है, तो उसमें तो डिबेट है ही नहीं, डी फॉर्म तो बाय डिफॉल्ट है। प्लस माइनस हमको टेंशन नहीं लेना है, पूछो क्यों? क्योंकि वो तो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड होता है, वो तो हमको टेंशन लेना नहीं, स्ट्रक्चर देख के बता भी नहीं सकते हम वैसे भी। हमको टेंशन किसका लेना है, कैपिटल डी कैपिटल एल का या अल्फा बीटा का, जो हम स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। तो हमको स्ट्रक्चर किसका सीखना है, हमको अल्फा बीटा का स्ट्रक्चर सीखना है, हमको डी और एल का स्ट्रक्चर सीखना है। क्लियर था ये? ठीक है। हाँ, तो डी का अल्फा बीटा अब हम लोग बनाएंगे ग्लूकोज का। ठीक है, देखो तो अब मैं कार्बन वार्बन कुछ नहीं बना रहा हूं, अब मैं बना रहा हूं सिंप्लीफाइड तरीका आपके लिए, एकदम सिंप्लीफाइड। ठीक है, एंड दिस इज हाउ आई वांट यू टू ड्रॉ इन द एग्जाम, इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो, नीट एंड क्लीन, सिंपल। And one more thing, students tend to make this mistake that y'all keep drawing it with the pencil, but in the board exam they will want you to draw the structures by pen or in pen, not by pen. हाँ, आई कॉल इट अन्नू मलिक कार्बन। हाँ, वो है ना एक चोर कंपोजर बोलता हूँ मैं उसको। उसने एक ही गाना अच्छा बनाया अपनी लाइफ में, सारे गाने चुरा चुरा के बनाए उसने, बट एक गाना अच्छा बनाया जो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, मोह मोह के धागे। Yes. When I used to solve maths when I was in class 12, I had taken PCMB. तो अपना मेन सब्जेक्ट तो PCB था, तो मैथ्स लेके फंस गए। बाद में रियलाइज हो कि यार मैथ्स तो पढ़ना पड़ेगा, तो मैथ्स सॉल्व करते हुए म्यूजिक सुनते थे। ये आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बहुत किया मैंने, बट उसका फ़ायदा हुआ था थोड़ा बहुत क्या, काफ़ी फ़ायदा हुआ था सीखने से, क्योंकि आज केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आ जाता है। सो ऐसा नीट एंड क्लीन डायग्राम चाहिए। देखो, आई एम यूजिंग अ वेरी बिग स्केल हियर टू draw digitally, so it is taking a little time. It's easier to draw it on paper actually. Yes, so this is the structure for your Haworth projection. I'll just copy paste that, and we will draw both the structures where you will get a proper idea of what we are talking about. See, so this now I'm not writing C1 2 3 4, I'm just writing the numbers 1, I'm not writing carbon, C नहीं लिखा, understood है, 1 2 3 4 5 and 6, same way 1 2 3 4 5th and 6th। तो छठे नंबर का कार्बन ऊपर जाएगा, ये गारंटी है, ये फिक्स हो गया। अच्छा, ये फिक्स हो गया। अब आता है यहाँ पे, ठीक है, तो अब मैं फिल करते जाता हूँ, इनको फिल करते जाऊँगा। ठीक है, तो फिल करने के लिए सपोज आई टेल यू ऑन द फर्स्ट वन OH वॉज ऊपर, H वॉज नीचे, ठीक है। सेकेंड वन OH वॉज हियर, थर्ड वन OH वॉज हियर, फोर्थ वन OH वॉज हियर, सिक्स्थ वन में CH2OH इज हियर फॉर श्योर, तो यहां पर हाइड्रोजन है। ठीक है सर, बरोबर है। व्हाट अबाउट हियर? तो हियर सिक्स्थ वन CH2OH फॉर श्योर, हाइड्रोजन फॉर श्योर। ऑन द फर्स्ट वन आई एम चेंजिंग द पोजिशन, HOH को मैंने अब, तो ये जो OH को मैंने बनाया यहां पर इसके साथ सेम प्लेन में बना दिया, तो ये हो गया बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। समझा? बोलो हाँ कि एकदम इजी।
अच्छा, मैं जब बीटा वर्ड यूज करूं तो मुझे ग्लूकोपाइरानोज बोलना चाहिए, समझा एनसीईआरटी की मिस्टेक कहाँ है? The moment I say the word beta, which means I'm writing cyclic form, है ना? And when I write cyclic form means I have to write glucopyranose. तो वहां पर एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, चलो माफ किया। तो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस। अच्छा, अब मैंने ये जानबूझ के यहाँ पर हाइफिन डाला ऐसा, क्योंकि अगेन मेजॉरिटी बच्चे क्या करेंगे कि ये हाइफिन को देखकर मुझे पूछेंगे सर ये माइनस साइन लिखा मतलब ये क्या लीवो रोटेटरी है? नहीं भाई, वो हाइफिन है, ठीक है? तो इसलिए हाइफिन अवॉइड करो तो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपको खुद कोई कंफ्यूजन ना हो। करेक्ट, एंड दैट इज व्हाई इन योर टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड रिटन द प्लस माइनस रिटन एज ब्रैकेट्स। तो व्हेन आई राइट समथिंग लाइक बीटा टी देन प्लस साइन एंड आई राइट ग्लूकोपाइरानोस, हाँ, बट हियर इफ यू सी ये प्लस साइन, देयर यू कैन डिसाइड कि अच्छा ये प्लस साइन मतलब डेक्स्ट्रो था, डी मतलब ये ओरिजिनली डी फॉर्म था, वो तो वैसे भी सारे डिफॉल्ट ही होते हैं यार, डी माने डिफॉल्ट में तो है ही वो। और बीटा क्यों? क्योंकि ये OH और ये CH2OH सेम साइड था। कौन सा कार्बन था नंबर 1? ये था एनोमेरिक। आप बोलोगे ठीक है, मान लिया, सही। सेम लॉजिक यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये OH और ये CH2OH ऑपोजिट साइड्स पे हैं, आमने सामने हैं, ऑपोजिट प्लेन्स, ऑपोजिट साइड, जैसे सिस ट्रांस में करते थे वैसा कर लो, मान लो। तो यहां पर होगा अल्फा डी। अच्छा, अगर बीटा को प्लस लिखा तो अल्फा को माइनस लिखना, ऐसा नहीं है। बच्चे वो भी गलती करते हैं, वो नहीं करनी ना कि भाई बीटा प्लस था तो अल्फा माइनस, नहीं भाई, ग्लूकोज जनरली पॉजिटिव ही होता है। ये तो प्लस और माइनस तो हमारे बस में नहीं है। तो अगेन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ठीक है। क्या इसका नेगेटिव वाला भी पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, वो पोलरीमीटर बताएगा, हम थोड़ी बताएंगे। हम क्या बता सकते हैं? हम अल्फा बता सकते हैं, हमने बता दिया। हम डी बता सकते हैं, हमने बता दिया, बात खत्म। जो हमारे हाथ में, हमने उसको बता दिया। जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में ये देखा, ऑर्डर बताना हमारे हाथ में नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा। मॉलिक्युलरिटी बताना हमारे हाथ में था, हम रिएक्शन देखकर मॉलिक्युलरिटी बता देते थे। सिंपल। इज दैट क्लियर? सो बहुत ज्यादा डिटेल में घुस गए अपन, बट स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, समझ में आ गया। अब साइक्लिक हेमी एसिटाल फॉर्म्स। नहीं, the two cyclic hemiacetal forms of glucose. What are the cyclic hemiacetal forms? The alpha and beta form. They differ in the configuration of OH group on C1 only, and this C1 is now called the anomeric carbon, which I just explained. कैसे? एनोमेरिक क्या था? जो अल्डिहाइड था साइक्लाइजेशन के पहले। The aldehyde before cyclization was anomeric. Correct? चाहिए। So such isomers are called anomers. तो alpha and beta forms are called anomers of each other. तो हैवर्थ ने एक नया टर्म लेके आ गया। पहले हमारे पास थे ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स, डेक्स्ट्रो, लीवो, वो तो थे ही। हैवर्थ बाबा नया टर्म लाए, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ये नया टाइप का आइसोमर। क्यों? बिकॉज दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द एनोमेरिक कार्बन। बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना। सिंपल है अभी। अच्छा, बिकॉज इट्स अ 6 member रिंग सिमिलर टू पायरान, इसलिए पायरानोज बोला। पायरान क्या है? साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम्स। तो 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन,
इक्वल टू पायरान, इसलिए ग्लूकोज का नाम हो गया ग्लूकोपायरानोस। अब आप नोटिस करेंगे मैंने अल्फा डी ग्लूकोपायरानोस बनाया है, मैंने बीटा डी ग्लूकोपायरानोस बनाया आपके लिए यहाँ पर। चेक। किसमें? पहले वाले में मतलब? हाँ नहीं, इसमें भी एनोमेरिक, इसमें C1 इज एनोमेरिक। नाउ आई टेल यू हाउ, आई गिव यू अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ हाउ टू रिमेंबर एनोमेरिक आल्सो, डोंट वरी, जस्ट वेट वन सेकंड। अच्छा इसको कंप्लीट तो कर दे। हाँ मैंने कंप्लीट नहीं किया ना, कंप्लीट कर दे। अल्फा में OH H OH H OH H, ठीक है, ये अल्फा था, ये बीटा था, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने आपको एक ट्रिक बोली थोड़ी देर पहले कि जो राइट साइड पे है वो नीचे आएगा, जो लेफ्ट साइड पे वो ऊपर आएगा, करेक्ट? तो अगर मेरे को अगर कोई बोलता कि तू साइक्लिक स्ट्रक्चर मत बना भाई, तू सिर्फ स्ट्रेट चेन में जो एसिटाइल बनाया ना उसी को देख के जज करके बता कि अल्फा है कि बीटा है, तो कैसे बता पाएंगे? कैसे? बीटा, एग्जैक्टली। तो अगर मेरे को वो बोले कि नहीं तू साइक्लिक मत बना, तू सिर्फ यही देख के बता दे, तो मैं बोलूँगा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो एनोमेरिक के लेफ्ट पे है तो ये ऊपर जाएगा तो बीटा, और अगर राइट पे होता तो अल्फा, सिंपल। तो जैसे राइट पे डी और लेफ्ट पे एल, किधर? फिशर में। वैसे राइट पे अल्फा, लेफ्ट पे बीटा, किधर? हैवर्थ में। है तो एक सिमिलर ही हुआ। तो दोनों ने ऐसे कुछ बहुत अलग नहीं हुए। वो कंफ्यूजिंग लगता है बिकॉज वन इज ओपन चेन, वन इज क्लोज चेन, बट व्हेन यू लुक एट इट द लॉजिक इज वेरी सिंपल फॉर बोथ। ठीक है, तो ये एकदम से क्लियर हो गया अपना अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू आई रिमेंबर दैट C1 वाज कॉल्ड एनोमर? तो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिंट, एक ट्रिक बता रहा हूं। जस्ट रिमेंबर, ये चीजें लिखी हुई नहीं मिलेंगी आपको कहीं बुक्स में, बट ये याद रखने जैसी चीज है। जस्ट रिमेंबर the carbon that had the functional group will become the anomeric carbon. Simple. अच्छा हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, शुगर, फंक्शनल ग्रुप क्या पॉसिबिलिटी थी? या तो एल्डिहाइड होता या तो कीटोन होता। कीटोन होता तो कार्बन नंबर किस पे होता? बस बात ही खत्म हो गई। तो इफ अल्डोज शुगर C1 will be anomeric, और if ketose sugar C2 will become anomeric। बात ही खत्म होगी ना यार, बोलो हाँ कि ना? तो अगर आपको अब कोई पूछे कि फ्रुक्टोज का एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, डू यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? नो, C2। क्यों? उसी पे तो कीटोन था। अरे थोड़ी बुद्धि वापरेंगे वो समझेगा, जिस पे कार्बोनिल था वो पहले कायरल नहीं था क्योंकि डबल बॉन्ड था उस पे। फिर बाद में वो कायरल बनेगा साइक्लाइजेशन के बाद। तो जो पहले कायरल नहीं था अभी कायरल बना, वही तो है एनोमेरिक। गंगाधरी शक्तिमान है ना। सही बात। पीटर पार्कर तो स्पाइडरमैन है, सही बात है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के ये दो ऐसे कंपाउंड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, जिसके स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके याद करने पड़ेंगे। रीजन बिकॉज वो बोर्ड एग्जाम में 3-3 मार्क के लिए बनाने को आएंगे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आस्क मी दैट द लॉजिक ऑफ ड्रॉइंग दम इज वेरी इजी, जो मैंने ऑलरेडी काफी बार एक्सप्लेन किया। वापस और एक फ्रुक्टोज का भी बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो हमने ग्लूकोज के ऊपर तो पूरी छानबीन जांच पड़ताल कर डाली ग्लूकोज की, कि भाई हाँ स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, साइक्लिक भी हो सकता है। स्ट्रेट चेन होगा तो डी और एल होगा, साइक्लिक होगा तो अल्फा बीटा होगा। डी कब बोलेंगे, एल कब बोलेंगे, अल्फा कब बोलेंगे, बीटा कब बोलेंगे। डी एंड एल को एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं, दे आर इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्फा बीटा को ये अपन क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं, बिकॉज दे डिफर इन एनोमेरिक कार्बन। क्लियर? यहाँ तक हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अब फ्रुक्टोज पे जाते हैं, सेम छानबीन डिटेल फ्रुक्टोज की करेंगे।
सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंस क्या है, लेट्स चेक। फ्रुक्टोज में सिमिलैरिटी ये कि भाई 6 कार्बन तो इसके पास भी थे, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है बरोबर, 6 कार्बन तो सर इसके पास भी थे, आई कैन नॉट आर्ग्यू विद दैट। हाँ अच्छा, डिफरेंस क्या था कि सर इसके पास फंक्शनल ग्रुप के नाम पे कीटोन था, जो ये है। इसका भी नेचुरल फॉर्म कैपिटल डी फॉर्म ही होता है, पर लीवो रोटेटरी होता है। ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था कि नॉर्मली फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी मिलता है, बट वो अगेन पोलरिमीटर का काम है, वो हमारा काम नहीं है, मतलब माइनस साइन वाला। पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तो डी फॉर्म ही रहती है। अब बोलोगे हाँ सर ये भी बरोबर बोला आपने, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन तो डी फॉर्म ही रहेगी, सीधी बात है। तो अगेन आप नोट करो मैंने क्या बोला, मैंने जो सेंटेंस बोले उसको ध्यान से इसमें अप्लाई करके देखना है। कॉन्फ़िगरेशन डी फॉर्म है, हाँ सर डी फॉर्म, ये रहा OH। माइनस साइन है, हाँ मैंने बोला ना नेचुरली लीवो रोटेटरी है। किसका काम है, पोलरिमीटर, हमको लेना देना नहीं है। दोनों OH बाजू बाजू में सेम साइड पे है, हाँ उसके बाद वाला ऑल्टरनेट है। ये भी सेम लॉजिक ग्लूकोज में भी अप्लाई किया था, यहाँ भी अप्लाई किया, तो सारे फंडे तो सेम है, कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। तो OH OH फिर OH फिर ये H फिर ये H, बन गया स्ट्रक्चर। बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और बोलोगे अच्छा लास्ट कायरल, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, ये रहा लास्ट कायरल। तो क्या ये डी है, हाँ बोलोगे हाँ सर ये तो डी है, ये डी फ्रुक्टोज है। ये माइनस साइन के साथ आता है, क्यों माइनस साइन के साथ आता है सर, अब मुझे मत पूछो, पोलरिमीटर को पूछो, ठीक है ना। बट हम मान लेते हैं, चलो टेक्स्ट बुक में लिखा, हम मान लेते हैं कि हाँ माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। कभी फुर्सत मिलेगी तो हम भी एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लेंगे कि एनसीईआरटी में सही लिखा है कि नहीं। वैसे तो सही लिखा हुआ है ना, मैंने तो देखा है। तो ये इसलिए क्योंकि आपको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के क्रिस्टल्स की केमिस्ट्री करवाई जाती है, फर्स्ट ईयर MBBS फर्स्ट ईयर BDS में आपको करवाई जाती है। बायोकेमिस्ट्री नाम का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें वह यू विल मेक ओसाजोन क्रिस्टल, जो आप लोग को नहीं है अभी, जेई में पूछते हैं ओसाजोन के बारे में, नीट में तो बिल्कुल आपने नाम भी नहीं सुना होगा, बट वो है। तो उसके एक्सपेरिमेंट्स में आपको ये देखने मिलेगा एक्चुअली चीज़ें। खैर फ्रुक्टोज का ये रहा, ये फिशर है कि हावर्थ है, फिशर ऑब्वियसली, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब क्या हुआ, तो यहाँ पर कीटोन और अल्कोहल की आपस में रिएक्शन हो गई, ये कीटोन रहा ये अल्कोहल रहा, आपस में दोनों के रिएक्शन हो गए तो हेमीकीटाल बन जाएगा। तो हेमीकीटाल जब बनेगा तो ये CH2OH तो इंटैक्ट रहेगा। अब जो इसके डबल बॉन्ड थे वो अब टूट गए, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के बीच में ज्यादा रिएक्टिव ये है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है बेटा। अब आता है सवाल, सपोज आई टेल यू कि अच्छा ये कार्बन सेकंड नंबर वाला, ये जो कार्बन है सेकंड नंबर वाला, ये पहले कायरल नहीं था। आप बोलोगे हाँ पहले कायरल नहीं था, अब कायरल हो जाएगा, मतलब ये एनोमेरिक है। तो पहले n की वैल्यू क्या थी फ्रुक्टोज के लिए 3, तो 2n की वैल्यू क्या थी 8, अब n की वैल्यू क्या है 4, 2n की वैल्यू क्या होगी 16। तो आप बोलोगे ठीक है मान लिया सर। लास्ट आखिरी चीज, यहां पर मैंने OH को लेफ्ट साइड पे बनाया, यहाँ पे सॉरी इसके OH ने तो रिएक्ट कर लिया था ना, तो इसको O के साथ में जोड़ दिया। कितने मेंबर की रिंग, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर की रिंग, तो फ्यूरान रिंग। अब इसी को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे, अब इसको रिप्रेजेंट कैसा करेंगे चेक करते हैं। हाँ, सो नाउ आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस सेम थिंग अगेन इन द साइक्लिक फॉर्म। check the drawing how you have to draw, ध्यान से। It should look like a pentane ring, should have the shape of a pentane ring, 5 members obviously, but with 1 oxygen.
आज गला बहुत खराब है यार. Okay. Yes, same rules to be followed. Nothing new. Same rules to be followed. First of all, both are derivatives of D form. Obvious, D form. Because in nature, D form. Acha. Now, when I say carbon, so you will say, okay, carbon number, this is 2, 3, 4, and 5. Now, this is the confusion that people have. Sir, why not 1? Check. COC 1, 2, 3, 4 और 5. 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है ना, तो 2 और 5 के बीच में ऑक्सीजन है. ये रहा, देखो, ये रहा 2, ये रहा 5, दोनों के बीच में ऑक्सीजन है. बरोबर है. हाँ बोलो, यहाँ सही बात है. अच्छा, 6th कार्बन, 6th कार्बन ऑलवेज ऑन टॉप, फिक्स हो गया. ठीक है, तो 5th वाले का इधर ये H हाइड्रोजन, ये झक मार के इसको नीचे ही आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसके पास. तो ये तो क्लियर हो. अच्छा, अब मैं बोलता हूं फर्स्ट वाले कार्बन को ऑब्जर्व करो. फर्स्ट वाले का, ठीक है, तो अब बोलोगे फर्स्ट वाला कार्बन CH2OH है. मैं बोलूंगा ठीक है. सेकंड वाले को ऑब्जर्व करो. सेकंड वाले के लेफ्ट साइड पे OH था. लेफ्ट वाला ऊपर जाता है नीचे आता है? लेफ्ट वाला ऊपर आता है, तो OH ऊपर आएगा. OH जो है वो OH जो है वो ऊपर आएगा. अरे yeah, so I said either on the second one. तो if I say on the second carbon the OH is, second carbon पे क्या लगा हुआ है? O. तो ये रहा second carbon का ऑक्सीजन. तो second carbon पे क्या क्या अटैच है चेक करना है ना. ये रहा O, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, ये रहा O. दूसरे साइड पे ये CHOH, तो हाँ ये रहा थर्ड नंबर वाला COHOH. ठीक है. तीसरा उसके ऊपर अटैचमेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का लेफ्ट साइड पे, तो मैं बनाऊंगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऊपर. बोलोगे ठीक है, ये भी सही है. अब क्या बचा? CH2OH, तो वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आएगा? विच मीन्स कार्बन नंबर 1 विल कम नीचू इधर. सो हियर यू विल हैव 1 2 3 4 5 एंड 6 है 6 कार्बन, बट रिंग 5 मेंबर की. सेम रूल्स अप्लाई.
दिस, ये तो ऊपर ही रहेगा, अगर OH ऊपर आ गया तो बीटा, बीटा डी fructofuranoस, yes or no? Now I want to draw alpha. बाकी पोजीशंस डायरेक्ट है, उसमें कोई मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता, तो ऑब्वियस आप लिख लोगे, नहीं बनाया तो भी चलेगा, बट ये मेन है CH2OH, ठीक है। नंबर 2, 3, 4 एंड 5, सिक्स्थ वाला तो ऊपर ही था। अब मैं बोलता हूँ अच्छा फर्स्ट वाले का OH नीचे है, तो फर्स्ट कार्बन एटम ऊपर आ जाएगा। सो हियर दिस इज वेयर पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज, सर ये दोनों को कंपेयर करें, नहीं भाई, क्या बोला था, एनोमरिक कार्बन का OH, एनोमरिक कार्बन कौन था फ्रुक्टोज के लिए, C2। हाउ डू वी नो दिस, बिकॉज वी नो दैट कार्बन नंबर 2 कैरीड द फंक्शनल ग्रुप। अब बोलो एकदम क्रिस्टल क्लियर, यस और नो, है ना, कोई कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं है। एनोमरिक कार्बन सेकंड नंबर वाला था सर, फर्स्ट वाला नहीं था। अच्छा सेकंड वाले का OH ये रहा, सिक्स्थ वाला तो ऊपर है ही, दोनों ऑपोजिट साइड है, तो अल्फा आमने सामने, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस, क्लियर। डी फॉर्म ही बनाने, एल फॉर्म तो बनाने नहीं है, ये भी क्लियर है। तो इट इज लीवो रोटेटरी, हाँ तो हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, लीवो रोटेटरी है तो माइनस साइन डाल दो भाई। क्या प्लस साइन का पॉसिबिलिटी है, हाँ आप करो अपना एक्सपेरिमेंट करो, उसका रोटेशन चेंज करो, जो करना है करो, प्लस साइन का पॉसिबिलिटी है, बट वो कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंटली। हमको स्ट्रक्चर में अल्फा बीटा समझता है, हमने बना दिया, डी और एल समझता है, हमने बना दिया, खत्म। सो विच मीन्स the words that are important here to mark, D series, yes, levo rotatory normally, yes, so it is written as D minus, yes, open chain structure ये रहा D minus fructose, of course दिख रहा है, 5 membered ring बनाता है, फ्यूरानोज रिंग है, फ्यूरान से कंपेयर किया हुआ है, ठीक है। तो अल्फा डी और बीटा डी, अल्फा डी माइनस बीटा डी माइनस, मैंने दोनों यहाँ पे आपके लिए बना दिए, आप कंपेयर कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम है, चेक कर लो। बीटा डी में OH ऊपर है, जिसको मैंने सर्कल किया है, CH2OH तो ऊपर है ही, और अल्फा डी में OH नीचे है, ये रहा, CH2OH तो ऊपर है ही। इज दिस क्लियर? ओके, हैव यू ड्रॉन दिस? Yes, otherwise you can take a screenshot of this for your, just for your reference, and then you can practice it again. Sure.